बड़ी खबर के साथ पूर्व डीजीपी पंजाब के सुमेश सैनी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस ने उनको गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार के मामले में सुमेश सैनी की गिरफ्तारी हुई है। खुद विजिलेंस विभाग के दफ्तर पहुंचे थे पूर्व डीजीपी सैनी। विजिलेंस ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लंबे वक्त से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी। चंडीगढ़ में कोठी खरीद मामले में एफआईआर उन पर दर्ज थी। सैनी को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई थी। कोर्ट ने जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। गिरफ्तारी के खिलाफ आज सैनी के वकील कोर्ट का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे पंजाब से कि पूर्व डीजीपी सुमेश सैनी विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार के मामले में सुमेश सैनी की गिरफ्तारी हुई है। खुद विजिलेंस विभाग के दफ्तर पहुंचे थे पूर्व डीजीपी। विजिलेंस ने पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। लंबे वक्त से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और आखिरकार विजिलेंस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि चंडीगढ़ में कोठी खरीद मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। सैनी को हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की राहत मिली थी, लेकिन साथ में कोर्ट ने जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। गिरफ्तारी के खिलाफ आज सैनी के वकील कोर्ट जाएंगे। सुमेश सिंह सैनी की गिरफ्तारी हो चली है। पंजाब के मोहाली जिले के विजिलेंस दफ्तर के बाहर असी खड़े हैं, जिथे सुमेश सिंह सैनी नूं रखा गया है। हालांकि अंदर हुण किसी नूं जाण दी जिहड़ी परमिशन है वो नहीं दी गई है। तो दस्सिया जा रहा है कि सुमेश सिंह सैनी इत्थे जांच शामिल होण आए सी, लेकिन उन्होंने इत्थे ही बिठा लिया गया। तो हुण उस तो बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी कीती जा रही है। साडे नाल सुमेश सिंह सैनी के जिहड़े एडवोकेट ने मनदीप जी, उन्हां नाल पहले भी गल हुई सी। मनदीप, अज ये सारी चीज़ां होई है, तुसीं भी ऑबवियसली उन्हां दे वकील हो, लगातार तुसीं कंटिन्यू इन्हां दा कर रहे हो, लेकिन अज होया की एक्चुअल च की होया? इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना आए सी जी असीं ते उदों साडी अरेस्ट पा ली इन्हां ने। ठीक है, हाँ सी जी, हो गया एक हाई कोर्ट से ऑर्डर सी, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ठीक है। तो सर ये किहड़े मामले च ਜਿਹੜਾ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸੀ? ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਓਕੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਗਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ। ठीक है। ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪਤਾ ਸਰ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਤੱਕ। ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋ ਅੰਦਰ? ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਹਾਂ, ਕੋਰਟਸ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ? ਉਹ 13 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਡੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਐਜ਼ ਪਰ ਆਰਡਰਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਐਦਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਾਣਾ ਪਤਾ। ਕੋਰਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ, ਲੈਟ ਦਾ ਲੀਵ ਦਾ ਮੈਟਰ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਤੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ।
अगली बड़ी खबर, हिमाचल एंट्री के लिए एक बार फिर से ई पास जरूरी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के वक्त पूरी जानकारी देनी होगी, अपनी नेगेटिव रिपोर्ट कोविड की अपलोड करनी होगी। मालवाहक गाड़ियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। हर रोज हिमाचल आने जाने वालों को भी राहत जरूर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से देवभूमि में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, उसको देखते हुए काफी महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला ये जयराम सरकार का है। हिमाचल एंट्री के लिए अब ई पास जरूरी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के वक्त पूरी जानकारी देनी होगी और साथ ही कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। मालवाहक गाड़ियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। हर रोज जो हिमाचल आ जा रहे हैं उन पर भी आदेश लागू नहीं होगा, उनको भी राहत दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल से, जहां ई पास एक बार फिर से जरूरी कर दिया गया है। जी हां, कोविड के केस बढ़ने लगे हैं, ऐसे में एहतियातन बड़ा फैसला हिमाचल सरकार का कहा जा सकता है। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। रणबीर, सरकार ने एक बार फिर से हिमाचल में एंट्री के लिए ई पास जरूरी कर दिया है। क्या लगातार जो पिछले कुछ दिनों से केस बढ़ रहे हैं कोविड के, उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला सरकार का? देखिए सुदेश, ये दोनों तरह की चीजें इसमें है। एक तो जो हवाला दिया जा रहा है कि जो सिस्टम अभी जो पाबंदी लगाई गई थी कि हिमाचल आने के लिए जो है, जो बाहरी राज्यों से जो भी व्यक्ति आएगा उसे RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, या तो फिर जो सर्टिफिकेट है वैक्सीन का वो देना होगा। एक हवाला जो है सरकार की तरफ से ये दिया गया कि जो बॉर्डर पर चेकिंग का जो सिस्टम है वो जो है सही नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये पहले जैसी व्यवस्था जो है यहाँ पर राज्य सरकार ने की है और इसीलिए जो है फिर से एक बार फिर से ये पाबंदी लगाई गई है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अब लगातार जो है केसेस बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से भी ये देखा जा रहा है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है, क्योंकि एक्टिव केसेस की जो संख्या है सुदेश, वो 2700 से ज्यादा हो गई है और अब धीरे धीरे जो है हर रोज जो केसेस का सिलसिला है वो 200 से ज्यादा है। हर रोज 200 से ज्यादा केस आ रहे हैं और इसको देखते हुए ऐसे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी लहर जैसी स्थिति जो है हिमाचल में देखने को मिले। सुदेश जी, शुक्रिया रणबीर जानकारी के लिए। तो काफी बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार अब एहतियातन कड़े कदम भी उठा रही है। हिमाचल एंट्री के लिए ई पास जरूरी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के वक्त ही कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी, लेकिन ये आदेश जो रोजाना मालवाहक वाहन है या जो रोजाना हिमाचल आ जा रहे हैं उन पर लागू नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, आज से जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा चंडीगढ़ के हिमाचल भवन से शुरू होगी। हिमाचल के जो चारों लोकसभा क्षेत्र हैं वहां जन आशीर्वाद यात्रा जाएगी। जगह जगह कार्यकर्ता और विधायक कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर का स्वागत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज से जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी आज से। चंडीगढ़ के हिमाचल भवन से इस यात्रा की शुरुआत होगी। हिमाचल के चारों लोकसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचेगी और यहां कार्यकर्ता और विधायक अनुराग ठाकुर का स्वागत करेंगे।